नेहरू युवा केंद्र द्वारा टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपने प्रदर्शनों के साथ भाग लिया। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों, खालसा पब्लिक स्कूल, सेंट मैरिज स्कूल तथा निर्मला स्कूल आदि शामिल थे। इस प्रदर्शनी में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक देवदास पैक, मल्टी पैरामेट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी शोलबे के तकनीकी अधिकारी देव कुमार भद्रा, रसायन विज्ञान के संकाय यश प्रशांत निर्णायक रूप में मौजूद रहे। My name is Shahib Omik. I am studying in class 8. My school name is Government RVV Ravindra Bangla Vidyalaya. When this is road extension system, when car come wrong side, the street breakers can upside. When car not goes this side, but car can say the right side when car goes to this road, but then wrong side car goes next road. This is car and right side the car pass through the breaker. When wrong side the car pass not the breaker. Breakers can upward. My name is Safia Khatun. I am studying class 8. My school name is Government सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बंगला विद्यालय पोर्टल। ये एक 3D नेट इंटरैक्टिव ज्योमेट्री का मॉडल है। इसे अगर हम पुल करें तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में कन्वर्ट होता है। Myself Ankita Mathi from Ravindra Bangla Vidyalaya School. So welcome to our trigonometric park. This project is based on the real life applications on trigonometry. So here we have so if you ask the student what is the most difficult chapter in your whole maths syllabus, they will answer the trigonometry. Why is it so? They don't know the applications of trigonometry. So here we made a fun and excitement project to recognize all the formulas and where we can apply the trigonometries. So firstly we will see what is angle of elevation and what is angle of depression. So let us take an example of seesaw. If you stand here and if your eyesight look upwards, so the angle of it will make the angle of elevation, and if you stand here and your eyesight goes below the level, so it will make the angle of depression. Here the main is Pythagoras theorem. It is the fundamental of trigonometry. The formula of the Pythagoras theorem is h square equals to p square plus b square. In this there will be the triangle which is 90 degree, and we can calculate the angles and the sides of the triangle with the help of h square plus b square plus p square. Here are some formulas which is based on the Pythagoras theorem. And trigonometry is also known for its speciality in which we can calculate the height of the tower, in which a person can stand here and calculate by using the formulas of the trigonometry. They can calculate the height of the tower. And this is a Ferris wheel in which we can calculate all the functions, where the functions will change and where the functions will not change. And these are some trigonometric ratios. With the help of this we can recognize all the trigonometric ratios. Thank you. Myself T. Shreya from RBV school. So this is a maths project based on applications of derivatives, in which we can calculate the calculus equation. Firstly, when we talk about applications of derivatives, when we say dr by dt, here rate of change of acceleration with respect to time occurs. Here we have imitated an underwater earthquake which generates tsunami. At epicenter, concentric wave formation takes place. Firstly, the first wave with minimum energy hits the coastal area. Secondly, the wave with maximum energy, which is going to hit the coastal areas, will be calculated with the help of this satellite. Through this satellite, the information will be transferred to Disaster Management Department. Through Disaster Management Department, we can alert the public by using this siren. By using this siren, we can alert the public, those who are present in coastal areas.
So, by using derivatives dr by dt, we can save n number of populations with infrastructures. So, this is very basic concept with wide knowledge. सर मेरा नाम श्रीराम मन्ना है। मैं आज आपके सामने स्मार्ट गॉगल्स लाया हूँ जो ब्लाइंड लोगों का डेली लाइफ को इजी कर सकता है, जो ब्लाइंड लोगों को सेल्फ रिलायंट बना सकता है, उन लोग को दूसरा बिना किसी का हेल्प के वो अपना काम खुद कर सकते हैं इजीली। इसमें यूज़ हुआ IR सेंसर, एक 9 वोल्ट बैटरी, एक बज़र और एक स्विच यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्विच को ऑन करेंगे, फिर जब हम लोग सामने हाथ लेके जाएंगे तो ये सेंस करेगा। सेंस करने के बाद मतलब सामने जो भी कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो सेंस करके ये सिग्नल भेजेगा, फिर ये बज़र से एक आवाज़ आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे ब्लाइंड लोग जो है उसे टकराना बंद हो जाएगा। तो इसी से हम लोग ब्लाइंड लोगों को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। ज्योमेट्री बेसिक्स के ऊपर बनाए गए हैं। एक नॉर्मल पैटर्न है, जैसे इसका यूज़ ऐसा होता है, इसको घुमाएं तो अपना आप एक आर्ट बनाता है। ये देख सकते हैं, ये आर्ट बनने के बाद ऐसा होता है। ये आर्ट बनने के बाद इसका थोड़ा सभी को, मैं हूँ एन दिनेश कार्तिक G++ RBV स्कूल से। मैं आज ये एक सिंपल सा एक बहुत अच्छा वाला एक मॉडल में बना के लाया हूँ जिनका नाम है डीसैलिनेशन, यहाँ पर लिखा होगा। यह है कि टोटली एक तीन क्लासेस से जो है बटा हुआ है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से बटा हुआ है। तो मैं ये प्रोजेक्ट बस ये क्राइटेरिया के लिए मैं इधर लाया हूँ कि मैं रंगत से आया हूँ, पोर्ट ब्लेयर में बस मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरा फैमिली सभी जो है रंगत में है, तो रंगत में आके हर एक समर सीज़न जो है पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, वाटर स्कैरसिटी बहुत देखने को मिलता है। ऊपर से एक विलेज में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर पानी का प्रॉब्लम तो बहुत है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पर समर सीज़न में आके RO जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है उसको छोड़ के, वो आके बहुत रेट हो जाता है, तो उसको छोड़ के हम लोग एक अफोर्डेबल प्राइस में ये एक मॉडल के थ्रू हम लोग जो है समुंदर का पानी को हम लोग पीने लायक पानी बना सकते। समुंदर का पानी को जो है ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग करवाएंगे। इसके अंदर जो है पानी है, जब हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ से देखिए आप फ़िल्टर्ड पानी जो है आएगा। यहाँ से शुरुआत में नमक पानी जो है, इसका अंदर चारकोल है और भी बहुत सारा जो है सब मटेरियल्स है, जिससे शुरुआत का नमक पानी जो है फ़िल्टर होके आएगा। तो अब ये फ़िल्टर हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेशन वाला प्रोसेस में आएंगे। इवेपोरेशन में आके हम लोग एकदम सिंपल सा ये प्रेशर कुकर को यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से बचा कुचा वाला सॉल्टीनेस जो होता है ना, जो समुंदर का पानी में बचा कुचा वाला सॉल्टीनेस भी ये इवेपोरेशन प्रोसेस से जो है फुली ख़त्म हो जाने के लिए हम लोग किया है। हाँ, उसको हटा दो। और जो है यहाँ से थ्रू इंडक्शन जब हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ से जो है इवेपोरेट होगा और सॉल्ट जो है नीचे डिपॉजिट होगा और ये पाइप के थ्रू जो है इवेपोरेटेड वाटर यहाँ पे आके कंडेंस होगा। ये गरम वाला इवेपोरेटेड वाटर जो है यहाँ में कंडेंस होने के लिए यहाँ पर हम लोग कूल कपड़ा रखे हैं, तो यहाँ में कंडेंस होके यहाँ पर जो है फिल हो जाएगा। जब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इतना देर यहाँ पर भरा रखे थे, ये इतना देर काम करके जो है यहाँ पर भर गया था। यह है कि एक्चुअली ये प्रोसेस होने में लगभग से 15 मिनट ही होता है।
तो रिवर्स ऑस्मोसिस आके बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट है, एटलीस्ट 10,000 एक 12,000 तक का आता है। बट ये प्रोसेस को हमने जस्ट 700 रुपीज़ में हम लोग करके दिखाए हैं, और ये पूरा हम लोग प्रूफ रखे हैं कि ये आके एक पोर्टेबल वाटर है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको हमने ये प्योर मतलब सॉल्ट वाटर, समुंदर का पानी से हम लोग पीने लायक पानी बनाए। तो प्रूफ के लिए हम लोग भी यहाँ में पीएच रखे हैं, जैसे कि ये है आपका सलाइन वाटर और ये डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर माने ये जो प्रेशर कुकर से जो है आपका जो पानी बनता है ना, तो वो वाटर है इसका। तो अभी हम लोग पीएच हम लोग टेस्ट करेंगे, तो पीएच भी एज अ प्रूफ जो है हम लोग यहाँ पे रखे हैं। तो पहले डिस्टिल वाटर, ये जो प्रेशर कुकर का जो पानी था उसको रख के देखते। डिस्टिल वाटर का जो है जनरली 7 होता है, पीएच वैल्यू 7 का मतलब है नॉर्मल डिस्टिल वाटर जिसमें कोई मिनरल नहीं है। तो ये प्रेशर कुकर का अंदर बिना मिनरल का पानी, यहाँ पर देखिए कलर मैच हो रहा है 7, ये थोड़ा हल्का येलोइश ग्रीन टाइप का कलर मैच हो रहा है। तो ये है कि कंफर्म करता है कि इसके अंदर जो पानी है डिस्टिल्ड पानी है। और ये हम लोग बीकर में रखे आके सलाइन वाटर है, इसका मतलब ये समुंदर का पानी। समुंदर का पानी जनरली जो है एसिडिक मीडियम का होता है, 5.5 अप्रॉक्स वैल्यू जो है होता है। तो इसको भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा डार्क ऑरेंज का तरह थोड़ा लगता है। तो इट मीन्स दैट यह कि 5.5 का लेवल पर जो है आता है सलाइन वाटर, जिसको हम लोग समुंदर से ही हम लोग कलेक्ट करके आए हैं, जो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए होता है। और लास्ट में ये बीकर आके आपका यह पोर्टेबल वाटर है, ये जो रिज़ल्ट है ना जिसको हम लोग पी सकते, तो यही वाला पीने लायक वाला पानी है, यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करके रखे हैं। पीने लायक वाला पानी में क्या है कि ये हम लोग ये मटका इसीलिए हम लोग यूज़ करें क्योंकि ये मटका में आपको पता है जनरली सॉइल से बना होता है। तो ये सॉइल में आके बहुत मिनरल्स रहता है, मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसा मिनरल्स होता है। ये डिस्टिल वाटर को, बिना मिनरल्स का वाटर को यहाँ में मिनरल मिलने के लिए हम लोग यहाँ में ये अर्दन पॉट को रखे हैं। तो यहाँ में थोड़ा देर ये पानी जो है गर्म पानी ठंडा भी हो जाएगा और यहाँ पे मिनरल्स भी बन जाएगा, जिसके कारण इसका पीएच वैल्यू थोड़ा अल्कलाइन हो जाएगा। जैसी ये डिस्टिल वाटर 7 था तो यहाँ में पोर्टेबल वाटर 7.9 से 8 तक का हो जाएगा, जो कि पीने लायक है और फुल्ली फिल्ड विद मिनरल्स है। तो ये आके उन पीपल लोग के लिए बहुत काम आएगा जो आके इसको ठीक से एक आरओ सिस्टम को जो है ले नहीं सकते। तो हर घर में जो है ये एक ही हर घर में हम लोग देख नहीं सकते कि सभी लोग आरओ सिस्टम को रखे हैं। कुछ कुछ पुअर फैमिलीज़ भी रहते हैं, कुछ कुछ गरीबी से जो अपना ज़िंदगी को बिताते हैं, तो उनके लिए ये एक छोटा सा एक सिंपल वाला एक मॉडल है जो कि बहुत काम लायक है। मेरा नाम निर्बान दास है, मैं आरबी गवर्नमेंट रविंद्र बंगला विद्यालय स्कूल से हूँ। आज का जो मेरा ये एग्जिबिट है तो ये एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन है क्लोरोफिल बैटरी का। तो क्लोरोफिल बैटरी ऐसा है कि हम लोग जो क्लोरोफिल जो मिलता है हम लोग को, वो ग्रीन लीफ सबसे मिलता है हम लोग को। ग्रीन लीव्स हो गया, ग्रास हो गया, तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि ग्रीन लीव्स को हम लोग थोड़ा सा इथेनॉल में आके हम लोग बॉईल कर दिए। तो उसको बॉईल करने के बाद हम लोग को उसको फिल्ट्रेट करके ये जो सब्सटेंस दिखता है आपको ये बनेगा। इसमें हम लोग एक कॉपर रॉड एक जिंक रॉड डाल दिए। तो जिंक रॉड आके आपका एनोड का तरह काम करेगा और कॉपर रॉड आके आपका कैथोड का तरह काम करेगा। तो हम लोग अगर ये जो हम लोग का क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम आके आपका जिंक को लूज़ कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, और कॉपर आके आपका इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्पीड से गेन करना शुरू कर देगा। तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आके। तो आप यहाँ में देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करता है कि मतलब इसमें दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग, सो करंट इज़ फ्लोइंग, मतलब करंट दिखा सकता है। तो इसको हम लोग एक ऑल्टरनेट बैटरी का तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैटरी का ऑल्टरनेट में इसको भी रख सकते हैं हम लोग। My name is Rubina Khatun. This is a model to find we learn easily LCM and HCF. So LCM is called least common multiple. HCF is also called GCD, greatest common divisor. So some example of LCM 2 and 3. We use some pom-pom balls.
मल्टीप्लिकेशन टेबल है, फिर हम लोग 3 वाला लेंगे। इसमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो हमारा एलसीएम, जो 6 है, ये भी कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है, ये हमारा कॉमन जो मल्टीपल है। तो इसमें से सबसे जो छोटा जो है वो हमारा 6 है, तो 6 हमारा एलसीएम है। और एचसीएफ का एग्जांपल ऑफ एचसीएफ 24 एंड 18 एंड 30। वन का टेबल में हमारा 18 आ जाता है, 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, और फिर आता है हमारा 6 का टेबल में 6, 9 का टेबल में भी 18 आता है, फिर आके हमारा कोई भी टेबल में नहीं आता है, 18 में 18 आता है। तो फिर हम लोग लेंगे 24 वाला, जो 1 का टेबल में भी आता है, 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, फिर 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में भी 24 आते हैं, और 8 का टेबल में भी 24 आते हैं, 12 का टेबल में आते हैं 24, फिर आके 24 में 24 आते हैं। Sir, my name is Mohammad Akil Khan and I am from Ravindra Bangla Vidyalaya class 9th, and this is Chandrayaan 3 miniature model. As you know, this is first time which country has land on South Pole. सर इसको हम मैनुअली लैंड करेंगे, जो मैनुअल पावर से, और बाकी सब जितना है सब रिमोट कंट्रोल से ही करेंगे सर। The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. रुको लैंड करो। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सर अगर पॉसिबल रहेगा, सिलेक्ट हुआ तो अब अगली बार हम लोग रोबोटिक आर्म लाएंगे और सीसीटीवी कैमरा लाएंगे। जो रोबोटिक आर्म है वो मिट्टी का सैंपल लेगा चांद से, फिर उसको टेस्ट करके अर्थ में वो भेजेगा। फिर जो कैमरा है उससे हम लोग देख सकते हैं चांद में क्या क्या है, मिट्टी वगैरह वो सब। अगर पॉसिबल रहा तो करेंगे ये वाला। हमने एक ये मॉडल बनाया है जिसमें हम बताएंगे कि फ़्लड को हम कैसे पता कर सकते हैं कि फ़्लड कैसे पहले आएगा। सर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने बैटरी, स्विच और एक बजर लगाया है। तो सर जैसी पानी एक तारों के ज़रिए एक लेवल तक पहुंचेगा, यहाँ पे एक आवाज़ बढ़ेगी, ऐसी आवाज़ बनेगी तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि फ्लड आने वाला है, जिससे हम पहले ही इवैक्यूएट कर लें और हमारे जान को कुछ हो ना, इससे हमारी जान को कुछ खतरा नहीं है। Myself Tanishka Majumdar. So I am from Khalsa Public Senior Secondary School. So today my project is rainwater harvesting. So during the rainy season, the rain get collected on the overhead tank of the building or apartment. From there, it gets collected on the storage tank. And this stored water is used as many purposes such as agriculture or irrigations, household purposes and other household purposes. Thank you. And it also helps to in availability. It increases the availability of water in dry seasons. My name is Panna from Khalsa Public Senior Secondary School. So today this is a imagination project which shows that how we can implement and control a noise pollution
So it's an imagination, and let's welcome to Serenity. Actually, this controls the vehicles which were made up of noise pollution. When it horns, it controls the noise to convert it into a light energy, and it forms into a street light. And the buildings were also made with the acoustic walls which absorb the sound energy, and this sound energy converts into light energy which forms into a street light. So this is to inspire that how we can contribute our country and implement a good noise pollution situation. My name is K. Priyadarshini of class 11 from Khalsa Public Senior Secondary School. So we are representing the adrenal gland. As this gland is located on the upper side of kidney, this gland is very useful, and we have to know about this gland, as this gland is also known as fight and flight hormone. It secretes adrenal hormone, which helps us to when we are too stressed, it secretes adrenal hormone, and we should keep away the stress by practicing meditations, yogas and all. And this is the very we are representing this gland for giving a small information. Has so many people are getting stressed nowadays, they should practice the meditation, yoga. So, when I all present here, myself Nirali Kekecha from Khalsa Public Senior Secondary School of class 9th A. Today we have made this model named LDR, Light Dependent Register. This model is shown from ancient to modern time. We know that in ancient time there is no electricity and fire. They faces many difficulties, such as they used to rub the stones to produce the fire. But in a modern time we have one solution named LDR. LDR stands for Light Dependent Resistor. It is also known as photoresistor. It is invented by the Willoughby Smith. In this LDR helps the device to flow the current in their house. Now we will show some demo that how this LDR will work. When we put the flashlight, full flashlight on the LDR device, it will generate the electricity in our house. Some are the applications of LDR are they are used in light detection, they are low power consumption and etc. तो मेरा नाम आर लोकेश है और यहाँ में हम लोग बनाए एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक रेडीमेड ड्रोन बनाए हम लोग। ये है कि रिमोट कंट्रोलेबल है और इसको हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका हेल्प आके हम लोग एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वगैरह, जब मेडिकल में किसी को हेल्प चाहिए तो अगर कुछ लॉकडाउन अभी कुछ हो जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फुली मेड है, तो इसके एक कंट्रोलर है यहाँ में जिसमें हम लोग का लिथियम बैटरी है, उसको हम लोग कनेक्ट करके और इसका कंपोनेंट्स हम बोल देता है। आप देख सकते हैं यहाँ में कि 4 प्रोपेलर है, CCBC का है, और यहाँ में एक मदरबोर्ड है और इसमें 4 इंडिविजुअल जो DC मोटर्स है और लिथियम बैटरी है, उसका फुल पावर चार्ज के लिए। अभी हम इसको यूज़ करेंगे। मेरा नाम पवन नायक है, खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हमारा जैसा प्रोजेक्ट देख सकते हैं चंद्रयान 3 के ऊपर है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था और वो जाके लैंड 22 अगस्त 2023 में हुआ था। और रॉकेट देख सकते हैं GSLV MK3 से लॉन्च हुआ था। उसमें 3 पार्ट्स थे, एक हमारे लैंडर है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है। लूनार में जाके लैंड हुआ था, फिर रोवर उसका साउथ पोल में लैंड हुआ था। इसका जो CEO है वो है डॉक्टर श्रीधर पनिकार सोमराज और इसका जो ब्रांच है वो बेंगलुरु में है। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही। Myself Adarsh B. Nair. Me and my group is very excited to show our group project. My group members are V. Sanjay, Vinod Kumar, Rohit Sharma and T. Pratyush. Our project involves self-automation and safety measures, and our project's name is Firefighting Robot. As we know, fire is a very devastating cause which always comes with a cost of life, property and environment. Firefighters are brave individuals who risk their life and save ours. So basically I am presenting a model on elliptical carom board. So elliptical carom board is based on ellipse and its properties. So what is ellipse? Ellipse can be defined as the locus of all points of a plane such that the sum of distances of 2 points is constant.
So we can understand this by using this elliptical carom board. So this is the major axis and this is the minor axis, and these are the two focus points of this ellipse, plural foci. So according to the reflective properties of ellipse, if I place the striker at the focus 1 and strike it, it will hit the ellipse and move on towards the focus 2 where the coins are placed. So let us see this. Let us see one more time. So you saw that the striker move on towards the ellipse and was directed towards the focus 2 where these coins were placed. If I go mathematically, a tangent is created perpendicularly here and this angle equals to this angle. You can see here. And if I go with physics, the angle of incidence equals to the angle of reflection, and due to which the striker move on towards the focus 2. This whole property is used in healthcare technology, lithotripsy. Lithotripsy is the medical application of ellipse where the kidney stones are breaked or crushed into small pieces by using a light emitting or sound wave emitting device known as lithotripter. So this is the whole setup of lithotripsy, and the first patient is lie down on a water bed, and this is the lithotripter which is placed at the first focus, and this is the kidney stones which is situated at the second focus. The distance between these 2 points is first determined by ultrasound. So when the lithotripter emits the sound rays, it strikes the ellipse and move on towards the second focus where the kidney stones are placed, and thus they are crushed and passes through the urine through ureter. So this is the laser light, and if I place this laser light at the first focus, it will move on towards the second focus. You can see the path of the light as it is visible. It is moving on towards the second focus. This is how the lithotripsy works. Other applications of ellipse are as follows. First of all, the planets revolve around the sun in an elliptical path. You can see the path of ellipse. All the planets revolve around the sun in this path. And whisper gallery. Suppose you are standing on a room and your friend is standing far away from you, and suppose you whisper anything and your friend is able to listen all your whispers clearly. Yes, this is possible in a whisper gallery which is situated at London. This gallery uses the principles of ellipse. So when you whisper, the sound rays directed towards the ellipse will move towards the focus 2 where your friend is standing, and thus he is clearly able to whisper, clearly able to listen all your whispers. Then the third application is this elliptical trainer, which uses the path of ellipse, and thus it distributes the force on your both the legs to train your joints properly. This is how the elliptical trainer works. So this was how I was trying to explain you ellipse and all its properties in day-to-day life. By using the elliptical carom board, students can learn easily the properties of ellipse in a fun manner. This is our project, the Smart Stick. As you know, for the blind peoples, walking is very difficult and task for them. So they have to carry a stick for it. And every time they have to fluctuate the stick to know where should they go. But from this stick, we can identify the direction and the obstacles coming in front of them, and they can change their direction. Let's take a look. This is an ultrasonic sensor that detects an object coming in front of it. Then it sends the signal to the Arduino, in which the Arduino is coded by C++ coding, and when the code satisfies, then the buzzer will beep. If something comes in front of it, the Arduino code will satisfy. And a major problem comes through old age people and also for the blind people, that they can't able to hear also. For them, we have an vibration sensor so that they can feel the vibration and can go away of the obstacles. Let's see the demo. If something comes in front of it, it will beep. Other time? So our model is especially for the blind peoples and for the old age people. This is a Titan elevator. So इसका मैकेनिक्स ऐसा है कि आजकल जो मॉडर्न एज में लिफ्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्टेयर्स आजकल बहुत कम यूज़ होता है, तो हमने डिज़ाइन किया है एक एलिवेटर सिस्टम जो स्टेयर से अटैच रहेगा. ये लूप आप देख सकते हैं, ये एलिवेटर है जो रेसिडेंटल फ्लोर तक जाएगा.
और अभी सपोज कर लेते लिफ्ट यहाँ पे है और जो फिज़िकली चैलेंज पीपल्स है और जो CWSN पीपल्स हैं उनको बहुत मुश्किल होता है लिफ्ट में जाने के लिए थ्रू यूजिंग देयर हज़ार्डियस सामान जो भी थिंग्स होता है। तो ये एलिवेटर क्या करेगा, वो सामान को ऊपर तक लेके जाएगा। यहाँ पे सामान जो है रख सकते हैं हम इस जगह पे, एक फ्लैप जो है ऐसे ओपन हो जाएगा सामान को रखते साथ, जो फ्लैप है वो सामान को स्टिक कर लेगा ताकि वो नीचे गिरे ना। उसके बाद ये ऐसे ऊपर तक जाएगा थ्रू आउट द रेसिडेंट फ्लोर और जो पर्सन है वो लिफ्ट या तो स्टेयर्स के थ्रू आ सकता। ये मेजरली मॉडर्न सिटीज़ में यूज़ होगा मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी अच्छा से होने के लिए, और ये थ्रू आउट अगर अभी नहीं ये तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ताकि उनको ऑब्जेक्ट जो है हम लोग हज़ार्डियस ऑब्जेक्ट, वेट ऑब्जेक्ट लाइक रेफ्रिजरेटर तक इसमें लेके जा सकते हैं अपने रेसिडेंट फ्लोर तक, जो कि मॉडर्न डेज़ में बहुत चैलेंजिंग हो गया, ये उनको ईजिली करेगा। आई एम फ्रॉम GMSS मॉडल स्कूल। This is a NaviBot which is GPS enabled. It helps us to find the people under the debris of the building during an earthquake. Such as if a person is under the ground, the heat radiations may come out. So the sensors of the vehicle senses the heat radiation and the GPS enabled system transmit the data to the command center which provides the information to the rescue team. So the person can be rescued. हमने 4 तरह के अलग अलग फार्मिंग को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग एंड हाइड्रोफोबिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हम एनिमल फार्मिंग को रिप्रेजेंट किया है। इसमें होता क्या है कि जो एनिमल्स उनके जो वेस्ट होते हैं उनसे हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र बनाकर एक प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। हम आते हैं वर्टिकल फार्मिंग की ओर। यहाँ पे आजकल की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए हमने वर्टिकल फार्मिंग को बनाया है। ये एक कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है और ये लेयर वाइज हम बनाते हैं, और ये हमें इंसेक्ट और नेचुरल क्लाइमेटीज़ जैसे बहुत सारे मतलब भारी मात्रा में बारिश आना या बहुत सारे इंसेक्ट से हमें ये बचाता है। हम आते हैं अब एक एरोपोनिक फार्मिंग में। यहाँ पे हम बिना मिट्टी के एक प्लांट को उगाते हैं। सबसे पहले एक वेल होता है, उससे हम पानी थ्रू पाइप से मोटर की मदद से हम एक प्लांट तक पहुंचाते हैं। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऊपर में जितने भी गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो अपर लेवल में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसके जो प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है और अपने खुद को ग्रोथ करवाता है। अब आते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में। सबसे पहले एक वाटर कंटेनर से एक पाइप की मदद से वो सबसे पहले प्लांट में पहुंचता है थ्रू मोटर, और यहाँ पे हम मिट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। हम 6 अलग अलग डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, जो एक प्लांट को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दैट्स ऑल माय प्रोजेक्ट। या थैंक यू। मैं अभी पहुंचा ही हूँ, तो मैंने अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने देखे बच्चों के। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें बच्चे ने एक केक का अल्टरनेटिव दिया है। ये बहुत ही इनोवेटिव थिंग है। हम लोग जो घर में केक यूज़ करते हैं उस केक में इन्होंने बताया कि कैसे केमिकल्स यूज़ होता है, और अगर हम लोग केमिकल की जगह दूसरा अल्टरनेटिव अगर यूज़ करेंगे तो वो कैसा उसका न्यूट्रिटिव कंटेंट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। बाकी भी प्रोजेक्ट एक बच्चा इन्होंने एक LDR डिपेंडेंट एक सर्किट का भी इन्होंने दिखाया है कि कैसे LDR यूज़ करके हम लोग कोई इंट्रूशन को रोक सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी इनोवेटिव मेरे को लग रहा है। एक रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके बच्चे आए हैं, तो इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी 3-4 जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं इसको मिला के इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। ये निर्मला स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने ग्रुप में किया है प्रोजेक्ट, और कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी बच्चों लोगों ने किया है प्रोजेक्ट। तो NYK और बाकी लोगों का ये अच्छा प्रयास है। इससे क्या होगा कि बच्चे एटलीस्ट जो आइडियाज़ इनके मन में है इनको ये लोग जो है वो क्रियान्वयन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों के सामने रख रहे हैं। तो हम लोग इसको अभी आगे देखेंगे। बाकी मैं जैसा आगे चलता रहूँगा तो आपको मैं बताता रहूँगा। मेरा नाम आराध्या नारायण है। मैं क्लास 6 से हूँ, PMC केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 पोर्ट ब्लेयर। सो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी केक बनाया है जो हेल्दी है। हमें इमेजिन करना है ये केक होल ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट्स और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ों से बना है। हमारे जो मार्केट में केक आता है
उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे बॉडी को अनहाइजीनिक बनाता है और अनहेल्दी बनाता है। लेकिन ये केक हमारे परफेक्ट डिज़र्ट का एग्जांपल हो सकता है और एक हेल्दी डिज़र्ट का भी एग्जांपल हो सकता है। और मैंने यहाँ पे अपने ओपिनियंस लिखे हैं जो गवर्नमेंट को अप्लाई करने चाहिए हमारी कंट्री में, सो दैट हमारा कंट्री ज़्यादा हाइजीनिक बने। हम एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली का। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सो वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रीन हेल्थ जोन्स बना सकती है ताकि वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, वहाँ पे लोग ट्रीज़ को प्लांट कर सके, उगा सके और बहुत कुछ कर सकते। और गवर्नमेंट जो लोग हैं उन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना, जिनके इनकम लो होता है, वो उनको फ्री किट प्रोवाइड कर सकता है जिसमें शैम्पू, सोप, टूथब्रश, पेस्ट, बहुत कुछ होगा। सो ये मेरा प्रोजेक्ट था और मैं चाहती हूँ कि ये जो इम्प्लीमेंट्स है गवर्नमेंट में फ्यूचर में अप्लाई हो जाए ताकि हमारा कंट्री ज़्यादा हेल्दी बन जाए। माय नेम इज़ कामेश। आज मैं आपको एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बाय लेज़र को आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक लेज़र लाइट और LDR और ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस के साथ एक बज़र कनेक्ट हुआ है और उसके साथ स्विच और 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। जैसे ही स्विच को ऑन करते ही आवाज़ आने लग जाएगा। जब कोई रात को चोर वोर अंदर घुसेगा तो बीच में हम हाथ डालने से ये पी करके वापस बजने लग जाएगा। सर जैसे कि कोई चोर अंदर घुसता है, सर कोई चोर अंदर घुस जाता है सर, तो ऐसा हो जाता है, तो आवाज़ वैसे ही बजने लग जाता है। सो ये डिनोट करता है कि फ्यूचर ये डिनोट करता है कि फ्यूचर में कोई भी थीफ या कुछ आ जाता है तो मार्केट में ज़्यादा हाई प्राइस में आता है, तो ये कोई भी छोटे मोटे दुकान से ये सब सामान कम रेट में लेके हम ये सब चीज़ें सिक्योरिटी कर सकते हैं। I am Hepshiba of Nemla Senior Secondary School, presenting a solo exhibit on the topic microbial fuel cells. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक प्रेजेंटेशन माइक्रोबायल फ्यूल सेल्स के ऊपर। इसे हम बायोलॉजिकल फ्यूल सेल्स भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ये नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि ये कुछ एक तरह का ईंधन है, या ये एक ईंधन है जो आके हम अपने घर के सॉइल से बना सकते हैं। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो आके एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होकर एक नया एनर्जी को जनरेट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कॉपर प्लेट को लिया है जो कि एक कैथोड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और मैंने एक जिंक रॉड को लिया है जो कि यहाँ पर एनोड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसे मैंने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और यह है वोल्ट मीटर जो कि आगे कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो आपको दिखाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ एक्शंस कर रही हूँ, यहाँ पर आपको वोल्ट दिखा रहा होगा। ये तकरीबन 1 वोल्ट तक का जनरेट कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इतने कम सॉइल से 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अगर हम इसे बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इसे एक नई सोच की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उसके कई अलग अलग बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं करता बल्कि ये कई अलग अलग चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या। जैसे कि हम जानते हैं, एक गंदे पानी को ट्रीट करना कितना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम इस MFC के द्वारा प्रयोग कर कुछ नया सोचकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहेंगे तो इससे हम बहुत बड़े पैमाने में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हम अपने घर में कैसे फर्टिलाइज़र्स को बनाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। जैसे कि हमारे घर में प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को हम एक पिट में ढक कर रख देते हैं, उसके बाद वो एक मैन्योर में बदल जाता है, उससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है, जिससे हम आके अपने घर के एक
ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही उससे अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकालें जिससे हम घर बैठे ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर एक बैटरी में या फिर किसी भी तरह का जनरेटर में अगर हम उसे स्टोर कर पाए तो हम बैठे बैठे ही घर में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और इससे बल्कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी कम होगा, जिससे हमारा फ्यूचर जनरेशन में जितने भी आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी फॉसिल फ्यूल बचेगा और आकर ये माइक्रोबियल फॉसिल फ्यूल बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा। Good morning, sir. We the student of class 11 from Nirmala Senior Secondary School going to present an exhibit on a topic renewable energy resource. Here we will explore how various innovative technologies harness natural resources to create sustainable energy solution. Good morning, sir. My name is Kalesh, and first of all, I will show the wind energy. So, this wind energy helps change. This wind energy converts the kinetic energy present in the air into the electrical energy. For representing a model, we have selected a motor but in real windmill we used to use rotor, which converts mechanical energy into electrical energy. ऐसे काम करता है और इधर एक आपको लाइट बत्ती जलती वाली दिखेगी। इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है करके पता चलता है कि विंड मिल के ज़रिए हम लोग विंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग करंट को सेव कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। हमारे दो अगले प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। हम इसे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर कहते हैं। ये सेंसर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और ये है सोलार पैनल। सोलार पैनल की मदद से हम जितने भी व्हीकल्स हैं नए मोटर से उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घर में जो सोलार पैनल यूज़ करते हैं उसकी जगह अब हम नए पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं सोलार पैनल की जगह। उस पेंट की मदद से हम बिना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बिना उसका पेंट की वजह से हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Next, thermoelectricity. Waste is a major problem in our world today. We generate a lot of waste and getting rid of it is quite a big challenge. But what if we could use this waste to generate electricity? This is exactly what thermal electricity production using waste is. It is a technology which converts waste into electricity. Here, any kind of biodegradable as well as non-biodegradable waste could be converted into electrical energy by the thermoelectric generator which is present beside this metallic chamber, and the electrical energy gets saved. In conclusion, our exhibit has shown renewable resources which creates sustainable future. Additionally, this rainwater harvesting system demonstrates the significance of conserving water resources. By embracing this innovative technologies, we can significantly create a new sustainable future. Thank you, sir, for being the part of this journey towards a greener planet. मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय लंबा लाइन से हूँ। ये जो मेरा मॉडल है ये स्पेशली रूट है जो स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम सबको पता है कि इंडिया का जो डेथ रेट है रोड एक्सीडेंट्स के कारण वो बहुत ही हाई है और मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उनका डेथ हो जाता है। ये जो मॉडल होगा ये सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस के लिए होगा और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए होगा जो डायरेक्टली ओटी वाली फ्लोर, ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर्स वाली फ्लोर पर उन गाड़ियों को पहुंचा देगा जिससे कि टाइम कम हो। और फैक्ट ये है कि जो ओटीस होते हैं वो कभी भी आपको हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में नहीं मिलेंगे, वो ज़्यादातर हमेशा अपर फ्लोर्स में होते हैं, जिसकी वजह से भी जो है टाइम बहुत बढ़ जाता है और डेथ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ओवरऑल ये टाइम को कम करेगा और व्हीकल्स को जल्द से जल्द ओटी वाले फ्लोर पर पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलता है। हम ऐसे इसके सारे रूट्स चेंज कर सकते हैं। अनिमेश रॉय फ्रॉम क्लास 10 फ्रॉम विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय लंबा लाइन श्री विजयपुरम। सो मैंने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया आजकल की फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को ख्याल रखते हैं, क्योंकि
हाँ, यहाँ पे बहुत सारे आजकल स्कैम्स भी होते हैं, साथ में कि फैक्ट्रीज़ में जो हम फूड प्रोडक्ट जो कंज्यूम करते हैं उस सब में क्या है, स्पॉइल्ड फूड भी मिक्सड हो जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो बेसिकली सिस्टम के अंदर हमने इसके अंदर पे सेंसर रखे हैं, मीथेन MQ4 सेंसर, अंदर इसके अंदर पे स्पॉइल्ड फूड रखा हुआ है। सो इसमें हम लोग यूज़ करें आर्डुइनो ऊनो बोर्ड, फिर रेड एंड ग्रीन LEDs, फिर इसमें हमने लैपटॉप या तो कुछ भी डिस्प्ले रख से जिससे हम मीथेन लेवल को देख सकते हैं। सो इसमें अभी फ़िलहाल मैंने सेट करा है थ्रेशोल्ड 250 और इसमें अभी 277 के ऊपर पे अभी चल रहा है, मतलब कि फूड जो इसके अंदर रखा हुआ है वो सब स्पॉइल्ड है, तो इसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता। और जैसे आजकल स्कैम्स होते हैं, जैसे कि बाहर से देखने में फल सब्जी सब अच्छे दिखते पर अंदर से ख़राब रहते हैं, उस सबको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं मीथेन गैस के द्वारा। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र का, जिन्होंने आज इतनी शानदार जो बच्चों के लिए ये एग्जीबिशन कार्यक्रम का इंतज़ाम किया है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी बच्चे ने बड़े बढ़ चढ़कर यहाँ पे अपने मॉडल्स को दिखाए हैं, ये बहुत सराहनीय है। हमें हर क्षेत्र की मॉडल्स यहाँ पे दिखाया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर to electricity solutions to solutions for blinds, solution for fire fighting। सो सारे जो भी इंजीनियरिंग चैलेंजेस है सबको बच्चे ने कवर किया है। वास्तव में ये सराहनीय है और बहुत सारे नया आइडियाज़ बच्चे लेकर आए हैं, तो मैं तहे दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस आइलैंड्स। सो मैं नेहरू युवा केंद्र को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। शायद हमने डेट अगर तय करके थोड़ा देर पहले भेजा हो, शायद स्टेट लेवल का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट युवा उत्सव हो यहाँ पे, ऐसा हम लोग का प्रपोजल है। अगर होगा तो 25 तारीख से पहले होगी, 25 दिसंबर से पहले होगी। यानी कि जितनी भी 6 यूनिवर्सिटी में जितनी भी फर्स्ट हुआ है उस सबको यहाँ पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे फिर एक कंपटीशन होगी। उनमें जो फर्स्ट होगा उनको शायद हम लोग नेशनल फेस्टिवल में भेज पाएंगे शायद, बट आई एम नॉट श्योर। 2 दिन समय लगेगा इसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, 2 दिन समय लगेगा कंफर्म करने के लिए। लेकिन मैं सुबह यहाँ बात करने के बाद फिर मैं किसी को हेडक्वार्टर में मैसेज किया था और तुरंत गूगल शीट आ गया, जब भर के भेजो क्या पढ़ जाए। अगर हो गया तो रियली आई विल बी हैप्पी, आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं फिर एक बार इस तरह प्रोग्राम में भाषण मुझे कम चलती है, और फिर भी हम सरकार की है, सरकार भाषण देना मजबूरी समझते हैं, हमें भी मजबूरी है। कार्यक्रम का समन्वय नेहरू युवा केंद्र के गोपाल चौधरी विश्वास ने किया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। इस युवा उत्सव ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रचनात्मकता, नवाचार और एकता को बढ़ावा देते हुए विविध पृष्ठभूमि के युवाओं को सफलतापूर्वक एक साथ लाया। प्रेरणा करने का एक कदम है। हमें गर्व है कि आयोजन युवाओं का भविष्य के उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम आयोजन करने में हमारे जो सहयोग विभाग, टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन सहयोग किया है भरपूर। उनके सभी स्टाफ, उनके प्रिंसिपल महोदय को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि मैम आप इस कार्यक्रम करने में सफल बनाने में हमें मदद की है।